तो आज का lecture is not some crazy thing that I will be teaching or something like that, but it's completely my story. So I hope everyone is okay with that. One of the things that I believe that I want all of you guys to essentially take away from these sessions are principles, right? Most good product managers don't just learn skills. They learn certain principles of their life on which they want to live their life, right? That is something that I want you to take away from different aspects of my life. I'll try to cover as much as possible till now, but in case if there is something missing, we can cover it in the next session. I was born to Kashmiri Pandit parents specifically, and kahin na kahin, when I initially started, my parents had a very bad turmoil. We had been thrown away from Kashmir to Jammu. We came to a point where we essentially didn't have anything, right? Our land, our property, everything was torn away. And we essentially, but I was very fortunate that both my parents, they worked for the State Bank of India, right? And they had jobs, so they could give me a good upbringing. So they enrolled me in a Jammu ke, at least by Jammu standards, a very good school, right? But I was essentially a very mischievous guy. मतलब ना पढ़ाई करनी है ना कुछ करना वही है जो अपना मन करे, right? Like the vagabond of the family, not like the good guy of the family or something like that, but I was that person जिससे relatives डरते थे कि यार ये बच्चा हमारे घर नहीं आ जाना चाहिए, this person should not come to our home just because of the fact कि their children might get affected and they become bad students or whatever, right? तो कहानी ऐसी है. तो 8th 9th grade में ऐसा सीन था कि यार I used to read anything and everything, right, besides my academics. So I didn't learn mathematics a lot, I didn't learn things around that a lot. तो मैं कुछ भी रैंडम चीजें पढ़ता था. मतलब 8th ग्रेड में मेरे घर में एक Pentium 3 लगा था. आई एम टॉकिंग अबाउट 2005, राइट? 2005 के आसपास की बात कर रहा हूं मैं. तो एक Pentium 3 लगा था, और Pentium 3 पे मैं कुछ ब्रॉडबैंड के उस टाइम पे डायल अप टोन्स होते थे. हाउ मेनी ऑफ यू गाइस रिमेंबर दैट देयर यूज्ड टू बी अ ब्रॉडबैंड जिसमें टू 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 करके आवाज आती थी? कोई भी वेबसाइट ओपन करने के लिए लाइक इट यूज्ड टू टेक अस लाइक 2 minutes, 1.5, 2 minutes just to open a website, right? Just to open a website. So I used to read about Egyptian mythology, religion, psychology, and stuff like that, right? In 8th 9th grade, मतलब which is like very weird for a student of 8th 9th grade, right? And my parents used to think यार कि dude ये क्या करेगा लाइफ में, पढ़ता तो है नहीं, right? और कुछ रैंडम चीजें ही पढ़ता रहता है, right? तो कुछ होगा नहीं अच्छा. Eventually क्या हुआ? Eventually 9th grade में भी मैं I was never that person in school where people used to think like कि यार ये बच्चा तो टॉपर है, ये कुछ अच्छा करेगा, ऐसे करेगा. तो 10th grade में ऐसा सीन हुआ जो हर एक बच्चे के साथ होता है. I wanted a bike, right? So I essentially told my father that if I get these percentage marks in 10th grade, you would essentially buy me a bike. ठीक है? Essentially ऐसा हुआ कि 10th grade से एक महीना पहले, right, जब मेरे बोर्ड्स थे, तो यार मेरे को ये रियलाइज हो गया कि यार कि बाइक वाइक का तो कोई सीन होने ही नहीं वाला, कि इतने नंबर तो आएंगे ही नहीं. इतने नंबर तो आएंगे ही नहीं. तो मैंने सोचा यार चलो एक महीने की तो फाइट मार ही लेते हैं. तो मैंने अपने एक महीने को ना अपने आप को एक्चुअली एक कमरे में काइंड ऑफ बंद कर दिया. काइंड ऑफ क्या बंद किया, मतलब घर वालों ने ही बेसिकली बोला कि ये तुम्हारे लिए कमरा है, दिस इज द रूम दैट यू हैव, यू कैन स्टडी ओवर देयर, राइट? सो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज दैट इंटरेस्टिंगली आई स्टार्टेड रीडिंग अबाउट हिस्ट्री, सिविक्स होता था उस टाइम पे, एंड मैं ये सारी चीजें पढ़ने लग गया, राइट? आई स्टार्टेड रीडिंग देम बाय माई सेल्फ, राइट? एंड इतना इंटरेस्टिंग हो गया वो, राइट? पढ़ते कि आई एसेंशियली रेड द एंटायर थिंग, राइट? पूरी बुक पढ़ ली, हिस्ट्री की पूरी किताब पढ़ ली, ठीक है? मैथ्स वैसे ही पसंद था तो वो सब पढ़ने लग गया. तो यार 30 दिन बिना किसी एक्सपेक्टेशन के, क्योंकि मेरी भी एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि आई विल ब्रिंग 90%. साइमल्टेनियसली फैमिली की तो थी ही नहीं और स्कूल की तो दूर दूर तक नहीं थी, ठीक है? तो किसी की कोई एक्सपेक्टेशन तो थी नहीं मुझसे. तो मैंने ये मेरी पहली लाइफ का पहला प्रिंसिपल था, राइट? कि जब मैंने ये किया ना, मैंने सिर्फ अपने लिए किया. मैंने बोला यार चल मैं अपनी फाइट मारता हूं, देखते हैं क्या होगा, कौन मेरे को स्पेसिफिकली वो भी कर रहा है, और नहीं भी आएंगे नंबर तो क्या ही हो गया, लेकिन मैं अपने साइड से कंप्लीट फाइट मारता हूं, राइट? तो मैंने अपने साइड से 30-40 दिन पूरी फाइट मारी, जी जान से फाइट मारी, राइट? और मैं पेपर देने चला गया, ठीक है? अब मेरे पेरेंट्स को भी ऐसा ही लग रहा है. मैं आई गेव माय 10th बोर्ड्स, राइट? आई एसेंशियली स्टार्टेड गिविंग माय 10th बोर्ड्स. मैंने पेपर लिख के आया, सब लोगों के पेपर खत्म हुए, मैं भी खुश. 1-1.5 महीने तक, फॉर द नेक्स्ट लाइक 2 months देयर इज नथिंग दैट यू एसेंशियली डू, राइट? बिकॉज यू हैव टू चूज योर लाइक साइंस चाहिए या कुछ और चाहिए, राइट? तो इतना अंडरस्टैंडिंग था कि यार कि
साइंस ही पढ़ना है, ये तो क्लैरिटी है। और इतनी भी अंडरस्टैंडिंग थी कि यार कि 75-80% नंबर तो आ जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो एट दैट जंक्चर व्हाट रियली हैपेंड वाज आई फेल अ लॉट, बहुत बीमार पड़ गया। और मैं इतना बीमार पड़ गया कि मेरी हालत, मेरा स्प्लीन एनलार्ज हो गया, बहुत सारी चीजें ऐसी हुई कि मैंने उसी चीज को बहाना बना लिया कि यार कि आई एसेंशियली टोल्ड माय मदर व्हाइल सिटिंग व्हाइल आई एम सिक कि मॉम इफ आई डोंट गेट 90% ऑफ मार्क्स विल आई स्टिल गेट अ बाइक, विल आई स्टिल गेट अ बाइक। तो माय मॉम ऑब्वियसली एज मदर्स डू, शी सेड नहीं नहीं बेटा, वी विल बाय यू बाइक एंड व्हाटएवर एंड व्हाट नॉट। एंड 10th का रिजल्ट आता है, 10th का रिजल्ट आता है। रिजल्ट के टाइम पे आई एम ऑलरेडी सिक विद लाइक 102 103 फीवर चल रहा है मेरे को, ठीक है। मेरे साथ मेरा कजन बैठा हुआ है एंड वी ओपन द लैपटॉप एंड आई टेल हिम दैट यू चेक योर रिजल्ट फर्स्ट, आई डोंट वांट टू चेक माइन, right? Because I know for a fact that I'm not getting these many good marks for sure, right? So I was so hallucinated and so sick at that point that instead of telling his roll number, I told my roll number कि मेरा roll number डालो 2194653, this was my actual roll number, तुम चेक कर सकते हो। जैसे ही उसने डाला, उधर आता है 100 99 98 100। मेरे को मेरा कजन बोलता है रॉबिन तेरे 96% है, 97। मैं बोल रहा भाई किसी और का रिजल्ट है ये मेरा रिजल्ट नहीं है, ये किसी और का रिजल्ट है, तो रिफ्रेश मार लो। दैट वाज द फर्स्ट लर्निंग ऑफ माय लाइफ कि यार कि जो भी चीज तुम अपने जेन्युइनली प्रोसेस के पैशन के लिए करते हो ना, जो कि मुझे पता भी नहीं था, आई जस्ट डिड इट फॉर द हेक ऑफ इट, राइट? अपने शिद्दत से करते हो ना, जब तुम आउटकम को जेन्युइन, क्योंकि ना तो मैं आउटकम एक्सपेक्ट कर रहा था, ना मेरे स्कूल वाले एक्सपेक्ट कर रहे थे, ना मेरे पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो एक्सपेक्टेशन तो कहीं थी ही नहीं, राइट? इवन आई डिडंट बिलीव इन माई सेल्फ कि मैं इतने नंबर ला सकता हूँ, राइट? मैंने सिर्फ इतना किया, मैंने बोला यार मैं अपनी एबिलिटी पे बिलीव करता हूँ, जितना मुझे आता है मैं उतना करूंगा। और मैं शिद्दत से पढ़ा, बहुत शिद्दत से पढ़ा, राइट? 30-40 दिन मैंने जेन्युइन फाइट मारी और बिना सोचे। एंड व्हाट हैपेंड वाज सुपर सरप्राइजिंग, आई केम सेकंड इन द स्टेट, सेकंड इन द स्टेट। अब बिकॉज ऑफ दिस एक रैंडम चीज होने लग गई कि मेरे स्कूल से फोन आ रहे हैं कि अरे सर यही लड़का तो भगवान है, हमें तो पहले से ही पता था ये लड़का बहुत अच्छा है। ऑब्वियसली स्कूल वाले तो यही सब करते हैं, राइट? एंड दैट वाज माय फर्स्ट लर्निंग ऑफ माय लाइफ दैट whenever you truly love something, right? Even though I didn't, right? I'm just telling you, when I didn't love something and I put 100% effort, it resulted into something very good, right? When you truly love something and you don't believe कि मेरे लिए वो आउटकम इंपॉर्टेंट है, राइट? और तुम यू डू इट फॉर द लव ऑफ दैट थिंग, राइट? देन योर रिजल्ट्स विल बी इंसेनली बेटर, इंसेनली बेटर, राइट? जब तुम ये सोचते रहोगे कि मुझे प्रोडक्ट मैनेजर का टाइटल चाहिए और उसी आउटकम से फैसिनेटेड रहोगे कि यार कि मुझे मिल जाना चाहिए, तब तक तुम्हें कभी मजा नहीं आएगा। लेकिन अगर तुम्हें मजा इस चीज में आने लग गया कि यार कि ये प्रोडक्ट बनाने में ही मुझे मजा आ रहा है, राइट? मुझे बहुत इंसेन मजा आ रहा है, राइट? तो तुम रियलाइज ही नहीं करोगे कि तुम्हारी थिंकिंग एबिलिटी कैसे ग्रो करेगी, ठीक है? तो अब क्या हुआ, 11th ग्रेड में अगेन बिकॉज ऑफ द नंबर्स दैट आई हैड ब्रॉट, आई हैड बिकम लाइक अ सेलिब्रिटी इन स्कूल कि यार कि इसके तो नंबर बहुत आ गए, ये वो ऐसे वैसे करके। फाइनली 11th ग्रेड में मैं थोड़ा बहुत पढ़ने वढ़ने लग गया, थोड़ा बहुत जितना भी मैं करता हूँ, लेकिन इवेंचुअली आई स्टार्टेड स्कोरिंग वेरी पुअर, वेरी लिटिल मार्क्स, राइट? बहुत कम कम मेरे नंबर आने लगे। फिर मेरे साथ एक और इंसिडेंट हुआ। एक और इंसिडेंट क्या हुआ, 11th में वी हैड दिस चैप्टर, right, of combinatorics, right? At that juncture, what specifically happened was there was an exam and I had to give that exam, right? और मुझे उस एग्जाम में लिटरली कुछ नहीं आता, कुछ नहीं आता। एंड आई न्यू आफ्टर लुकिंग एट ऑल द क्वेश्चंस दैट ये तो मैं क्वालिफाई नहीं ही कर सकता, this I would not be able to qualify for sure, right? So what I did instead was I wrote on the exam paper to the invigilator, right, कि सर आप प्लीज मेरे मार्क्स मत बताना, ठीक है? मैं पक्का अगली बार फाइट मारूंगा एंड मैं अच्छे नंबर लाऊंगा। टेल मी व्हाट हैपेंड लेटर, तुम्हें क्या लगता है क्या हुआ होगा? इंस्टेड of doing this, that interviewer in the or the invigilator in the next class, he essentially came और उसने सबसे पहले मेरे ही मार्क्स बताए कि इसके 0 आए। अब सोचो मैं कितना ह्यूमिलिएट हुआ होऊंगा अपने अपने फ्रेंड्स के सामने, अपने दोस्तों के सामने, मैं कितना ह्यूमिलिएट हुआ होऊंगा, राइट? अब उस चीज के बाद ना मेरे पास दो ऑप्शंस थे। एक कि मैं ह्यूमिलिएशन को ही एंकर बनाता अपना जीवन का, राइट? और ये हुआ है मेरे साथ, ह्यूमिलिएशन को एंकर बनाता और मैं बोलता है मेरे को चिढ़ मच जाती, रिवेंज हो जाता, ये होता वो होता फलाना ढिमकाना। मैंने ऑन द कॉन्ट्रेरी बोला कि नहीं यार मैं मैथ्स पढ़ूंगा, आई विल स्टार्ट रीडिंग मैथमेटिक्स, राइट? और मैं पढ़ूंगा। तो जम्मू में एक शॉप हुआ करती थी साहित्य संगम करके, राइट? आई वेंट देयर एंड हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर एस एल लोनी?
there used to be a book on trigonometry called SL Loni. People used to prepare them for IIT and stuff like that. तब तक तो मुझे IIT का पता भी नहीं था, मतलब I didn't even know what IIT actually existed at that point of time. ठीक है, तो मैंने SL Loni ली और मैं कुछ सवाल करने लग गया उसमें कि यार बहुत सारे तो नहीं निकलते थे, मतलब if I used to attempt like 30, I could solve like 3 or 4 or maybe 5 at max, right? Slowly and steadily I started doing it again, repeating the same process, but specifically in maths. Physics और chemistry में मैं बिल्कुल अच्छा नहीं था तब भी, right? तो मैं maths में करने लगा. 2-3 महीने हुए, finally we essentially there came another exam, right? एक और एग्जाम आया और उस एग्जाम में मैंने फिर परफॉर्म किया. और शुरुआत के जो बच्चे होते हैं ना, जो फ्रंट बेंच पे, मैं तो बैक बेंचर था एवरी टाइम, कि किसी के 150 में से 120 आ रहे हैं, किसी के 110 आ रहे हैं, किसी के 115 आ रहे हैं. मेरे नंबर आते थे 20, 30, 35. तो लेकिन after that humiliation that happened, right, I started studying, and at that juncture, right, next time the teacher comes and says this time somebody else has topped, and I actually was the person who scored like 140 out of 150, and the second person was 110. Again, the second principle that I want you to learn in life: criticism and opinions don't matter. They don't. they can change like trivially. अगर आपको कोई इंसान ये आके बोलता है, जब मुझसे बच्चे पूछते हैं ना, सर मैं पीएम बन सकता हूँ कि नहीं बन सकता हूँ, तो क्यों नहीं बन सकते भाई, हर एक इंसान बन सकता है. It has nothing to do with your background. You just have to become a great problem solver, right? And that is what I'm trying to put across. Most people in your life encounter, they will form some opinion for yourself because they don't have time for you, right? Why do you expect a third person to give you X amount of time and believe in your abilities and stuff like that and whatever and whatnot? So they will frame an opinion about you and say कि यार, और 90% लोग ना वहां पे दुख को essentially फील करते हैं. क्योंकि अगर सोचो, श्रवण जैसा बंदा जिसको अगर तुम मान लो तुम सब लोग मुझे फॉलो करते हो, और अगर मैं ही तुम्हें आके बोल दूं कि यार कि तुम किसी काबिल नहीं हो, तो तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, राइट? यू विल फील रियली रियली सैड कि यार कि ये क्यों हो रहा है. तो यू विल स्टार्ट डाउटिंग योर ओन एबिलिटी कि यार कि शायद मुझसे नहीं हो पाएगा, राइट? बट मैं सत्य बता रहा हूं तुम्हें जीवन में कि ओपिनियंस की कोई इज्जत नहीं होती, लेकिन फीडबैक की इज्जत होती है. तो उस टाइम पे आफ्टर दैट टेस्ट वेयर आई फेल्ड मिजरेबली, राइट, वेयर आई स्कोर्ड 0, right, the only thing that I realized at that point was the feedback that you're not performing well in a subject which you essentially like, and that is right. Maybe the way of representation of the teacher was not right, but that is okay, that is fine. You cannot control your externals, right? But I took away something very positive from it, right, and started essentially preparing for it. फाइनली क्या हुआ, फाइनली 11th ग्रेड में ऐसा ही हुआ. तो मैथ्स में तो अच्छे नंबर आते थे, फिजिक्स केमिस्ट्री तो नहीं आती थी, ठीक है. 12th ग्रेड में क्या हुआ, 12th ग्रेड में पढ़ना वढ़ना वही शुरू किया, वैसे करके किया. पढ़ाई वढ़ाई तो करता नहीं था बहुत, वैसे ही दोस्तों के साथ घूमना, टाइम पास करना, यही सब चीजें करता रहता था. तो कभी ऐसी तो एक्सपेक्टेशन नहीं थी, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने को अब एक बार पता चल गया था कि हमारा बच्चा काबिल, थोड़ा बहुत तो काबिल है, कि 10th में अच्छे नंबर लेके आया तो शायद आईआईटी भी निकाल लेगा शायद. और मेरे दिमाग में तो दूर दूर तक नहीं था आईआईटी, बिकॉज मैं आर्ट्स ग्रेजुएट बनना चाहता था यार. मुझे म्यूजिक पसंद था. मतलब लाइक 11th ग्रेड में आई टोल्ड माय पेरेंट्स दैट आई वांट टू अप्लाई टू द रॉयल स्कूल ऑफ वियना फॉर म्यूजिक, राइट? एंड माय पेरेंट्स वर लाइक वी आर फ्रॉम मिडिल क्लास फैमिली, क्या बकवास कर रहा है तू? तो मेरे घर वालों ने मेरे को ये सब बोल दिया. अच्छा, क्रिकेट खेलता था मैं. I represented state for Jammu and Kashmir in cricket. I wanted to play the Ranji. Again, my parents said कि यार क्या करेगा, 50,000 रुपए की नौकरी लगेगी तेरी, 50,000 पता नहीं पैसे भी मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, God knows what you will do. So they said कि बेटा चुपचाप करो, इंजीनियरिंग करो. तो मैंने बोला ठीक है सर, बढ़िया है. Essentially, I gave the IIT exam and I failed. I couldn't qualify it. ये सच्चाई है, ठीक है. I am talking about 2010. अब उस पॉइंट पे मेरी क्या लर्निंग थी, मेरी उस पॉइंट पे ये लर्निंग थी कि यार देख, मैं काबिल तो हूँ, राइट? तो मैं अपने आप को, मैंने तो कभी 100% फाइट ही नहीं मारी, ठीक है. तो आई टोल्ड माय पेरेंट्स कि मुझे पढ़ने जाना है, मैं कोटा जाऊंगा, ठीक है. कोटा जाते ही मैं और मेरा कजन कोटा गए, ठीक है. हम दोनों बचपन से साथ पले बड़े, वैसे करके तो हम दोनों कोटा गए. कोटा में बिकॉज ऑफ माय मैथ्स आई जॉइंड देयर टॉप ड्रॉपर्स बैच which was called X1. कोटा में बैचेस होते हैं, मतलब 12th के टॉप 30-40 बैच होते हैं हर इंस्टीट्यूट में, 11th में 30-40 बैच होते हैं, और फिर ड्रॉपर्स के भी 30-40 बैचेस होते हैं. कि X1 में सारे के सारे ऐसे बच्चे हैं जो आईआईटी क्वालिफाई कर चुके हैं जिनकी रैंक खराब आई है, और वो इसलिए आए हैं क्योंकि उनको रैंक इंप्रूव करनी है. तो बच्चे जाके बोल रहे हैं कि मेरी 2500 रैंक थी सर, लेकिन इस बार मुझे टॉप 200 में आना है. तो ऐसे करके, तो मैं तो ऑब्वियसली क्वालिफायर नहीं था, ठीक है. तो
मैं अगेन अपने दोस्तों के साथ रहने वहने लग गया, वहां दोस्त बना लिए कोटा में। तो मेरा ऐसा हुआ कि फर्स्ट टेस्ट हुआ 3 महीने बाद, मैं X1 से सीधे चला गया X4। नेक्स्ट टेस्ट हुआ X4 से X7। तो तो ऐसा सिनेरियो हुआ कि 7-8 महीने, ठीक है, आउट ऑफ द 10 months दैट आई हैड टू स्टडी देयर, राइट, फॉर द फर्स्ट लाइक 4 to 7 months, राइट, I didn't study at all, right? Because I was not enjoying it. Because I used to go to classes and कोई context नहीं था. They used to teach just like simple concepts की क्वेश्चन कैसे निकालना है, but उसके पीछे कुछ बैकग्राउंड नहीं था, तो मुझे मजा ही नहीं आता था। अब 7-8 महीने के बाद ये होने लग गया कि एट दैट जंक्चर माय पेरेंट्स सेड कि अब तेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, अब तेरे को अब कश्मीरी पंडित्स के लिए ना देयर इज समथिंग कॉल्ड माइग्रेंट कोटा। कश्मीरी पंडित्स के लिए बिकॉज ऑफ द एक्सोडस देयर वर सर्टेन स्टेट्स जिसने अपने हर एक गवर्नमेंट के रीजनल कॉलेज के लिए, नॉट लाइक एनआईटीज और समथिंग, रीजनल कॉलेजेस में एक एक सीट रिजर्व कर दी थी। और मैं अपने आप को यही बोलता रहता था कि यार कि मैं इस रिजर्वेशन पे तो नहीं जाऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मेरे को नहीं करना। दैट इज समथिंग दैट आई बिलीव्ड इन माई सेल्फ कि मैं अपने मेरिट पे जाऊंगा, यार जाऊंगा तो अपने मेरिट पे जाऊंगा, ठीक है। तो अब मेरे को 7, 7.5, 8 महीने आफ्टर स्पेंडिंग इन कोटा एंड द आईआईटी एग्जाम इज लाइक प्रोबेबली आफ्टर 3-3.5 months, राइट, मेरी फटने लग गई। मैंने बोला भाई मेरे को जाना ही पड़ेगा, अब मैं क्या करूं, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है, लिटरली कोई ऑप्शन नहीं है कि यार अब मैं क्या करूं। अगर मैं आईआईटी या AIEEE में अच्छी रैंक नहीं लेके आया तो मेरे को कोई ना कोई रीजनल कॉलेज में भेज देंगे और वहां तो मेरे को जीवन नहीं गुजारना, ठीक है। दैट्स नॉट समथिंग दैट आई इंटेंड टू डू, राइट। अगेन बिकॉज द सिचुएशन वाज लाइक दैट, आई स्टार्टेड स्टडिंग। मैं पढ़ना शुरू हो गया। मैंने बोला नहीं यार, मैं पढ़ूंगा चाहे। अब अगेन मैं ऐसी स्टेज पे था कि X7 का बच्चा आईआईटी क्वालिफाई नहीं करता। X7 का बच्चा होता है कि AIEEE में मे बी दैट पर्सन वुड बी ब्रिंगिंग अ रैंक इन द टॉप 15,000 or 20,000 स्टूडेंट्स एंड मे बी गेट्स सम डिसेंट लेवल NIT और नॉट इवन अ डिसेंट लेवल NIT बट मे बी लाइक NIT सूरत टाइप चीज कुछ मिल जाएगी या NIT भोपाल टाइप कुछ मिल जाएगा। उससे ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं होती X7 के बच्चे से। मतलब X7 का बच्चा अगर IIT क्वालिफाई कर रहा है तो मतलब ये तो गेम चेंजर है, राइट, कुछ तो अलग चल रहा है, ठीक है। तो मेरे को ये रियलाइज हो गया कि भाई मेरा तो सिस्टम ही सेट नहीं है, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा, ठीक है। अब तो वैसे घर वाले तो वैसे ही नहीं पैसे देंगे और उन्होंने तो पैसे लगा लिए यहाँ पे, तो वो तो वैसे पैसे नहीं देंगे। तो मैं पढ़ना शुरू हो गया। अब उस टाइम पे मेरी मोटिवेशन इतनी ज्यादा हो गई कि मैंने यही सोचा यार कि अगले 3 महीने में, अब तुम लोग मुझसे सवाल पूछते हो सर हम कितनी देर प्रिपेयर करें, हमें कोई रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा। तुम मेरी सिचुएशन सोचो यार, मतलब मेरे को तो क्लैरिटी थी कि भाई मेरा आईआईटी नहीं हो रहा, फॉर श्योर नहीं हो रहा, राइट, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं बर्बाद चल रहा हूं और मेरे को यह भी पता था कि मेरे जीवन में अब कुछ होने ही नहीं वाला, अब मैं Tier 3 कॉलेज में ही जा रहा हूं, ये तो सत्य है। अब मैं अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा था अपने साइड से कि ओके डूड आई विल डू समथिंग, जितना भी मैं बेस्ट कर सकता हूं। अगेन मैंने पढ़ना शुरू किया। अब मैथ्स मेरा टिपिकली थोड़ा अच्छा था, ये बात सत्य है, इसमें मैं झूठ नहीं बोलूंगा क्योंकि मैंने पहले से ही आई डिड सर्टेन थिंग्स इन मैथमेटिक्स, बट आई वाज गुड एट मैथमेटिक्स, राइट। तो मैंने पढ़ना शुरू किया, वही मैंने तरीका अपनाया कि 10-12 घंटे में दिन का पढ़ा। सुबह उठता था, अगेन पढ़ता था, फिर दिन में कुछ खाता था, फिर अगेन पढ़ता था, फिर ऐसे ऐसे करके फाइनली आईआईटी का पेपर मैं देने गया। जब और उस साल 2011 की बात कर रहा हूं, आईआईटी कानपुर ने पेपर सेट किया था। द फर्स्ट सेक्शन इज जनरली केमिस्ट्री एंड देन इट्स फिजिक्स एंड देन इट्स मैथ्स, द लास्ट सेक्शन इज मैथ्स, राइट। आई वॉज गुड एट मैथ्स, राइट, फिजिक्स और केमिस्ट्री मुझे उतनी ज्यादा आती नहीं थी, फिजिक्स मेरी रिलेटिवली इंप्रूव हो गई थी। व्हेन आई लुक्ड एट द पेपर, राइट, द फर्स्ट सेक्शन ऑफ द केमिस्ट्री पेपर वाज एन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन, राइट। और मुझे कुछ नहीं आता, मेरे को यही नहीं पता। पहला क्वेश्चन ये है कि देयर इज अ सर्टेन केमिकल व्हिच मिक्सेस विद सर्टेन केमिकल एंड इट क्रिएट्स समथिंग एल्स। Because of that something else, there were 4 other questions which were after that कि what is that something else, and then there were certain questions on top of it. मेरे को वही नहीं पता था कि वो certain chemical क्या है, तो मैं क्वेश्चन क्या सॉल्व करूंगा। तो आई सेड चलो सर आगे। और इस तरह मेरे साथ 2-3-4 ऐसे होने लगा और मेरी फट ली आईआईटी के पेपर में। मतलब मैं बर्बाद हो गया, खत्म कहानी, मतलब नहीं हो पाएगा, अब हो गया मेरे को गिव अप कर देना चाहिए। मैंने फिर लास्ट थॉट था मेरे दिमाग में कि यार कि चलो यार केमिस्ट्री तो नहीं की, ठीक है, फिजिक्स में 1-2 सवाल निकाल लिए, चलो मैथ्स देखते हैं जो मेरे को आता है, जो रिलेटिवली मेरे को अच्छा लगता है। मैंने मैथ्स के पेपर पे गया और मैथ्स के सवाल निकालने शुरू हो गए। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, और क्वेश्चंस निकलने लग गए, ठीक है। मेरे में कॉन्फिडेंस बिल्ड होने लग गया कि हाँ यार कुछ तो कराऊंगा, कुछ तो कराऊंगा। पहला सेक्शन दिया, दूसरा इसी तरह सेकंड पेपर दिया, भूल गया पेपर के बारे में, बस
फॉर गॉड, मैंने बोला मैंने की भी चेक नहीं की। जनरली जो अच्छे बच्चे होते हैं ना, जो जिनको पता होता है कि मेरी सिलेक्शन होगी या कुछ होगी, वो जाते ही की चेक करते हैं। फाइनली मेरा एक दोस्त है, वो आईआईटी खड़गपुर से पढ़ा, वो इवन सिंगापुर में काम करता है, जेपी मॉर्गन में काम करता है। उसने आईआईटी खड़गपुर से इकोनॉमिक्स किया और हम दोनों एक जैसे ही थे, ठीक है। हम X1 बैच के लास्ट 2 बच्चे थे मतलब एक जमाने में, ठीक है। तो उसने मुझे बोला यार भाई मैंने अपने नंबर चेक कर लिए, मेरे तो 270 बन रहे हैं। तो उस टाइम पे आईआईटी का कट ऑफ भी 200 होता था, 200 या 190 या 185 के आसपास आउट ऑफ 480 ऐसा करके कट ऑफ होता था। मैंने बोला भाई इसके 270 बन गए, इसके 270 बन गए मेरे कितने, मैं बर्बाद। वो कह रहा मेरा आईआईटी दिल्ली हो जाएगा भाई, मेरा तो आईआईटी दिल्ली हो जाएगा, मैं सॉर्टेड सीट पर। मैंने गया, मैंने कहा अब तो की चेक करनी ही पड़ेगी, अब तो इतनी बेइज्जती तो नहीं सह सकता मैं कि मेरे साथ वाला लौंडा जो मेरे साथ ही पढ़ रहा है उसके 270 बन गए, ठीक है। फाइनली क्या हुआ, फाइनली आई मैंने भी अपनी की चेक की और करते करते पॉजिटिवली ऐसा हुआ कि फॉर्चुनेटली मेरे 292 बन गए। एंड आई वाज डैम हैप्पी कि भाई ये कैसे हो गया, राइट। और उसका रीजन ये था कि मेरे मैथ्स में 180 में से कोई 155 टाइप कुछ बन रहे थे। उस टाइम पे नेशनल रैंक्स आती थी, मतलब हर सब्जेक्ट की इंडिविजुअल रैंक आती थी। तो मेरी मैथ्स में ऑल इंडिया रैंक टॉप 50 के अंदर थी, ठीक है। तो मैथ्स मेरा बहुत अच्छा हुआ था, केमिस्ट्री में मेरे को 40-50 नंबर बने थे और फिजिक्स में कोई 70-80 नंबर बने थे, ठीक है। तो अगर मेरे मैथ्स में 150 नंबर नहीं आए होते 160 में से, या फिर 145 जो भी नंबर थे, तो मेरा नहीं हो रहा था। ये तो क्लैरिटी है, तो मेरे को मैथ्स ने नहीं पार कराई मेरी, ठीक है। केमिस्ट्री में तो मेरे को 40 नंबर थे 160 में से, ठीक है। अब सीन ऐसा होता है, उसके बाद नेक्स्ट थिंग, ठीक है। तो हम ये डिसाइड कर रहे हैं कि कहाँ जाएंगे। और बंसल यूज्ड टू टेल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि आपके नंबर्स के हिसाब से आपकी प्रिडिक्टेड रैंक क्या होगी। प्रिडिक्ट किया तो मेरी रैंक दिखा रहा है कि यार तुम्हारी टॉप 1000 के अंदर रैंक आएगी, तो मैं बहुत खुश। उसको रैंक दिखा, मेरे दोस्त को दिखा रहा है तेरी 1500 रैंक आएगी, तो वो भी बहुत खुश। तो हम दोनों मन ही मन प्लान बना रहे हैं। वो मेरे को बोल रहा है देख भाई हम जाएंगे आईआईटी दिल्ली, आईआईटी दिल्ली में तू सिविल ले लेना, मैं इंजीनियरिंग फिजिक्स ले लूंगा, मैं ये कर लूंगा वो कर लूंगा। और हम दोनों ने पूरे जीवन के प्लान बना चुके हैं, अभी तक रिजल्ट आया ही नहीं है तो हम दोनों एकदम ही कि भाई तू ये ले लेना, हम वो ले लेंगे, ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे फलाना। अब फाइनली रिजल्ट आता है, रिजल्ट में वो मेरे को फोन करता है, कहता भाई मेरी 4500 रैंक है मैंने बोला भाई मेरी 3000 रैंक है। तो फाइनली डेस्टिनी हैड समथिंग एल्स टू डू, राइट। आई इसेंशियली एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था प्रैक्टिकली। आईआईटी दिल्ली में बहुत बेकार टेक्सटाइल इंजीनियरिंग टाइप कुछ मिल रही थी, आईआईटी बॉम्बे में कुछ एमएससी वेमएससी मिल रहा था, कानपुर में इकोनॉमिक्स, खड़गपुर में सेम ब्रांच मिल रही थी जो मेरे को रुड़की में मिल रही थी। तो मैंने यही सोचा यार घर के बगल में है रुड़की, तो मैं वहीं चला जाता हूँ। दैट वाज द फर्स्ट मिस्टेक दैट आई डिड। आई डिडंट चूज माय पैशन, आई डिडंट, right? My passion was mathematics or computer science, right? I didn't do that. In spite of that fact that at that juncture मेरे पास आईआईएससी बैंगलोर का इनवाइट था, मेरे पास बिट्स पिलानी से इनवाइट था, लेकिन बिट्स पिलाने में मेरे नंबर भी बहुत अच्छे थे, मतलब मेरे को कंप्यूटर साइंस मिल रहा था वहां पे, लेकिन मैंने नहीं ज्वाइन किया। क्योंकि मेरे घर वालों ने मुझे क्या बोला कि यार कि तुम आईआईटी जाओ और आईआईटी में जाके तुम्हारा जीवन सॉर्ट हो जाएगा, जो भी होगा फलाना ढिमकाना, ठीक है। तो मैंने ये एक और गलती की, तो आई वेंट इनटू आईआईटी। पहले ही साल में मेरे को ये चीज रियलाइज हो गई थी कि यार ये तो पसंद ही नहीं है मुझे मेटलर्जी, कुछ भी पढ़ाते हैं यार, मतलब एटलीस्ट आई एम नॉट दैट पर्सन हु इज डिजाइन्ड फॉर इट, राइट। तो ये फर्स्ट मिस्टेक जो थी ना, ये मुझे हमेशा से खलती रही, क्योंकि मैं जब भी अपने दोस्तों को देखता था जो मैथ्स में अच्छा कुछ कर रहे, मेरे को नंबर थ्योरी बहुत पसंद थी, तो बहुत अच्छा अच्छा जो कर रहे हैं मेरे को बहुत बुरा लगता था अंदर से, यार काश मैं भी ऐसा कुछ कर पाता, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर के बाद क्या हुआ, फॉर्चुनेटली इसी रीजन से मैंने अपनी दोस्ती ज्यादातर कंप्यूटर साइंस के लौंडों के साथ करनी शुरू कर दी। एंड एज यूजुअल बिकॉज college was not interesting for me because I was not studying the things that I wanted to, right? So I started doing, and but at that juncture I had the license to do anything, right? अब तो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं हो रहे, तो मैं रैंडम दोस्तों के साथ दोस्ती करने लग गया, किसी के साथ रिलीजन का डायलॉग कर रहा हूँ, किसी के साथ कुछ और कर रहा हूँ, किसी के साथ कुछ कुछ कर रहा हूँ, कंप्यूटर साइंस के लौंडों के साथ कुछ कुछ कर रहा हूँ। तो दिल्ली जा रहा हूँ, दिल्ली बात, और पसंद भी नहीं था, मतलब रुड़की में रहना इतना अकेला हो गया था कि यार कि क्योंकि मुझसे कोई रिलेट ही नहीं कर पाता था और मैं भी अपनी ब्रांच से बहुत ज्यादा रिलेट तो नहीं कर पाता था। तो आई यूज्ड टू गो टू दिल्ली अगेन एंड अगेन। रुड़की टू दिल्ली इज लाइक 4.5 hours बाय बस, राइट। तो रुड़की से दिल्ली कोई 200 किलोमीटर है, तो आप 3-4 घंटे में दिल्ली आ जाते हो। दिल्ली आया तो मैं दिल्ली आया करता था। दिल्ली में क्या सीन हुआ, दिल्ली में ये सीन हुआ कि कई बार हम माई बार जाते थे, तो माई बार कैनॉट प्लेस में देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड माई बार, और हम बहुत बार मतलब नए नए लौंडे कॉलेज में गए हैं, दारू पीने का शौक है, बियर पी रहे हैं, ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं।
2-3 बार तो ऐसा हो गया कि पुलिस वालों ने पकड़ लिया पुलिस वालों ने पकड़ लिया। अब क्या हो रहा है, हम लेके जा रहे, घर वाले कितने पैसे भेजते हैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट को, प्रैक्टिकली 2000। मेरे घर वाले, मेरे पापा मेरे को ये बोलते थे, भाई बेटा तुम्हारी कॉस्ट सब कुछ, एजुकेशन सब कुछ मुफ्त है, ठीक है, तो तुम्हें पैसे चाहिए क्यों तुम्हें पैसे चाहिए क्यों? मैं थोड़ी बता सकता हूँ कि मेरे को पैसे चाहिए इसलिए क्योंकि मेरे को बाहर जाना है, दारू पीनी है, दोस्तों के साथ एंजॉय करना है, तो मैं तो ये बता नहीं सकता। तो मैं घर वालों को कुछ कुछ बोलता था कि पापा इसलिए चाहिए उसलिए चाहिए, तो मेरे को महीने के 1500 रुपए भेजते थे मैक्स, 1500 रुपए टोटल। और उसी में मेरे को दिल्ली भी जाना है, 100-150 रुपए की टिकट है, राइट। तो उसके बाद वहां पे पहुंचना भी है, दोस्तों के साथ चिल भी करना है, और इतने पैसे तो है नहीं कि हम कोई महंगी दारू पिए या कुछ वैसा करके कुछ करें। तो 3-4 बार ऐसा हो गया कि पुलिस वालों ने पकड़ लिया और हम पिटते पिटते बचे। मैंने बोला यार ये तो स्केलेबल नहीं है क्लियरली। तो यहाँ पे मेरी जीवन का पहला प्रोडक्ट मैनेजमेंट दिमाग चला पहली बार चला। मैंने बोला भाई इस प्रॉब्लम को तो सॉल्व करना पड़ेगा, ये तो स्केलेबल नहीं है, इस तरह तो जीवन नहीं गुजर सकता। तो मैंने अपने 2 कंप्यूटर साइंस के दोस्तों को बोला, मैंने बोला भाई एक काम करो, ठीक है, कुछ एक ऐप वैप बनाओ जिससे ऐप से मैं कम से कम ये बता सकूं कि गूगल मैप्स का एपीआई, कि मैं इतना बता सकूं कि यार मैं कहीं पे अगर लोकेशन को पॉइंट कर दूं या टैप कर दूं तो मुझे पता लग जाएगा ऑलमोस्ट इन रियल टाइम कि यार यहां से मत जाओ, यहाँ पे कॉप है, यहाँ पे एक पुलिस वाला है, ठुल्ला है, ठीक है। तो हम दोस्तों ने, हम तीनों सेकंड 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 ईयर में, हमारे पास काम तो वैसे भी कुछ करने को नहीं है, ना उनके पास कोई काम करने को, ना मेरे पास कुछ काम करने। हमने बोला यही करेंगे तो मैंने बोला ठीक है चलो यही करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमने कुछ कुछ करके एक बेसिक वर्जन बना दिया, ठीक है। अब बेसिक वर्जन का क्या प्रॉब्लम था, बेसिक वर्जन के बाद हमारा थॉट ये था कि यार कि अब हम क्या करेंगे, अपने दोस्तों में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, कॉलेज के ही जितने भी 400-500 लोग हैं, तो चलो यार पता तो चल ही जाएगा एक लेवल तक, ठीक है। तो हमने ये पेन पॉइंट पकड़ा और हमने बनाया और हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दिया और प्ले स्टोर पे डाल दिया। अब मैं बात कर रहा हूँ 2011 की, तब प्ले स्टोर एनालिटिक्स एग्जिस्ट ही नहीं करता था। तब से तुम्हें सिर्फ एक ही नंबर दिखाता था, प्ले स्टोर एनालिटिक्स कितने डाउनलोड है, दैट्स ऑल, कोई ज्योग्राफी लेवल पे नहीं। तो ऐसा हुआ कि हमने बनाया, ठीक है, बना के हमने पब्लिश कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है, अचानक से हमने 1-2 बार उसको यूज भी किया होगा, उसके बाद भूल गया मैं, वो भी भूल गया, मैं भी भूल गया, कोई रैंडम प्रोजेक्ट है। मैंने रैंडमली 2-2.5 महीने बाद ना प्ले स्टोर चेक किया, अचानक से मैं देखता हूं कि मेरे 1.5 लाख से ज्यादा डाउनलोड्स हैं। मैं बोल रहा हूँ भाई ये क्या हो गया, ये क्या, ये कैसी किस्मत है कि ये कौन जनता है जो डाउनलोड कर रही है, जो इस ऐप को डाउनलोड कर रही है और किस यूटिलिटी से डाउनलोड कर रही है। तो मैंने गूगल को एक्चुअली मेल किया, आई स्टिल रिमेंबर, आई एम टॉकिंग अबाउट 12 years बैक, राइट। एंड दे essentially reached back to me after like 7 days saying that people from Chicago, from Colorado, from other places, they are essentially downloading our app. And I said, but why the hell, क्यों कर रहे हैं, राइट। तो अपेरेंटली जहां ब्लैक कम्युनिटीज हैं, राइट, जहां पे थोड़ा व्हाइट ब्लैक के बीच में ना ज्यादातर फ्रिक्शन रहता है, वहां पे ज्यादा डाउनलोड्स हो रहे हैं, क्योंकि the black community used to pinpoint saying that please don't go from these places because there are cops. Now never in my wildest dreams would I have ever thought of this. Do you, कभी कभी तुम कुछ ऐसा बनाओगे, तुम्हें कभी ऐसा रियलाइज भी होगा कि ऐसा हो सकता है? मतलब दिस वाज इनसेन, लाइक कि ये क्या चल रहा है भाई, ये क्यों हो रहा है। तो अचानक से उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम बाद देयर इज दिस लार्ज एंटरप्राइज सिक्योरिटी कंपनी जो मेरे को मेल करती है, बिकॉज आई वाज द ओनर ऑफ द ऐप, ठीक है। वो मेरे को मेल करती है और बोलती है हम आपका ऐप खरीदना चाहते हैं। पहले तो मेरे को लगा ये कोई नाइजीरियन स्कैम है 100% स्कैम है। मैंने बोला लेकिन फिर मैंने बोला मेरे से क्या पैसे कमाएंगे, जो खुद ही गरीब है वो क्या पैसे देगा तुम्हें। तो मैंने बोला चलो बात करते हैं, कोई फाइट नहीं है। तो सही बात है, क्योंकि मेरे पास आई हैड प्रैक्टिकली नथिंग टू लूज, मेरे अकाउंट में 2,500 रुपए पड़े हुए थे। मैंने बोला अगर कमाएंगे तो क्या ही कमाएंगे उसमें से कमाएंगे तो क्या ही कमाएंगे। तो मैंने उनसे बात की एंड दिस कंपनी दे सेड कि अब हम तीनों लौंडे बैठे हुए हैं रूम में, हमारी जूम कॉल, सॉरी उस टाइम पे वेबएक्स कॉल होती थी, तो अपेरेंटली देयर इज दिस इन्वेस्टमेंट पर्सन और समथिंग लाइक दैट। तो हमारी कॉल थी, तो वो बंदा हमें बोलता है कि वी विल पे यू $50,000। मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने बोला भाई क्या बोल रहे हैं आप, ये कुछ रैंडम बकवास कर रहे हैं, $30,000 किस चीज के देगा, $50,000। मैं बोला भाई क्या बोल रहे हो तुम, मतलब। और मैंने कुछ नेगोशिएट नहीं किया, मैंने बोला सर डन, डील डन सर, डील डन है, मेरे को इससे ज्यादा बात ही नहीं करनी है, कोई फाइट नहीं है। तो हमने बेच दिया अकाउंट में, मतलब उस टाइम पे डॉलर की वैल्यू 40 या 42 के आसपास रहा करती थी। तो कोई हमारे पास $50,000 पे तू मान ले, यही अगर तो 50 ऑफ दैट है तो कोई 20 लाख रुपए आ गए। हमने 3 हिस्सों में डिवाइड कर लिए, सबके पास 7-8 लाख रुपए का पैसा, बढ़िया, तीनों लौंडे, जीवन शॉर्ट हो गया।
मैंने उस टाइम पे ये रियलाइजेशन हुई कि भाई यही तो करना है जीवन में लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करने और उसके बाद पैसा कमाना है. तो दैट वाज माय फर्स्ट इंक्लिंग ऑफ रियलाइजिंग कर. हाँ सही में सैम सही बोल रहा है. मतलब दिस गाय इज सेइंग दारू का 4 साल का, मेरे को तो लग रहा था अगले 10 साल का खर्चा निकल गया भाई, हो गया. मेरे घर वाले मेरे पापा बोल रहे भाई तू क्या कर रहा है, कौन से स्कैम चला रहा है, क्या कर रहा है तू ये पैसे कहां से आ गए तेरे पास. बट एनीवेज ठीक है, द स्टोरी गोज लाइक दिस. तो फिर सेकंड ईयर में ये रियलाइज हुआ कि नहीं यार मेटलर्जी तो क्लियरली नहीं करनी, ठीक है, और दिस थिंग हैड हैपेंड. तो आई स्टार्टेड सेइंग दैट इज देयर अ जॉब, राइट, in which I can essentially solve some problems and I get paid for it in return, and I would happily do that, right? No idea that there is something called product management, etc. Nothing like that, right? So fourth year mein, there was a senior of mine who essentially said ki, dude, there is this nice book, why don't you read this? मैंने बोला ठीक है, fair enough, because I used to go to that senior and I essentially asked them कि सर अब क्या करना है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मुझे कैट देने का कोई मन नहीं है, मुझे IAS नहीं करना, ठीक है. तो at that juncture my a senior of mine in my fourth year essentially tell me कि टोल्ड मी कि यार कि ये किताब है, इस किताब को पढ़ लो, ठीक है, तो तुम्हें शायद अच्छी लगे. और मैंने एंड दैट बुक्स नेम वाज इंस्पायर्ड बाय मार्टी कैगन, राइट. और मैंने इंस्पायर्ड पढ़ना शुरू किया, ठीक है. मैंने पढ़ना शुरू किया. मैंने बोला भाई ये तो यही चीज है, ये तो जो मैं कर रहा था वही तो कर रहे हैं.